हैदराबाद के चार मीनार के पास गुलजार हाउस इलाके में 18 मई की सुबह अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 8 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के 11 फायर टेंडर, एक फायर फाइटिंग रोबोट और ब्रोंटो स्काई लिफ्ट मशीन के साथ 70 से ज्यादा लोग मौके पर पहुंच गए। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इसको काबू पाने में, बुझाने में करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब यह आग कैसे लगी, ये भी एक सवाल है। पुलिस सूचना के मुताबिक आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर बने एक ज्वेलरी शॉप में शुरू हुई थी। उस वक्त दुकान में कोई नहीं था, लेकिन ऊपर के माले पर कई परिवार सो रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि एक दुकान के एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फट गया और आग की चपेट में आ गया। ऊपर कमरे में सो रहे लोगों को नहीं पता था कि नीचे आग लग गई है। आग की वजह से तेज धुआं का गुब्बार उठा, जिसमें कई लोग बेहोश हो गए, जिनकी जलकर मौत हो गई। So there is a fire incident in Krishna Pearl's shop and then residential complex in Guljar House area. So around 6:16, fire department got a fire call from this local residents, and at 6:17, fire department have dispatched the fire engines. Subsequently, 11 fire engines were dispatched along with sufficient staff. So when they came, there was smoke and fire in the ground floor. Our people tried to extinguish the fire along with rescuing the people. So the fire department has used breathing apparatus and oxygen masks to rescue the people. And then 11 people were taken out of the first floor and they were shifted to the hospital. 4 people were rescued from the top floor. So as per the information we got as of now, most of the people could not survive, those people who shifted to the hospital. How many casualties reported? The information is 17 people could not survive. What is the cause? What is the reason behind So this fire? the cause of fire could be in all probability as per the version of the workers working here, and then the examination, preliminary examination. There is a short circuit at the mains of the residential and commercial cum residential complex. So at the mains there was spark, and most of the fire happened near the mains and then 2 shops nearby. See, there was I am clarifying, there was a call at 6:16 and 6:17 fire tender was dispatched. I spoke to the local people also. They said they were here around 6 o'clock up. So people called around 6:16. We know we log everything, and then immediately other fire tenders were also dispatched. There was no deficiency from the fire department in fighting the fire or trying to rescue the people. One entry is there, sir. So there is only one entry of 2 meters, which is like a tunnel kind of entry is there into the building. And to access the first floor and second floor, there is only one staircase of 1 meter width, which is very difficult for any firefighting operators to access, number one. In spite of that, our people could do their job. Then second thing is, it's just difficult for the people to escape from single staircase. यहाँ चार मीनार के पास ओल्ड सिटी में सुबह सुबह एक फायर एक्सीडेंट आया। 6 बजे हुए तो 6:16 को फायर डिपार्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट का वहां मौजूद है। पूरा बचाने की कोशिश हुआ, मगर फायर पूरे अंदर में लगे रहे थे, तो 17 लोग का यहाँ उसमें से मिले हैं। उसमें से ऑफिशियल अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, मगर मेजॉरिटी लोग का मौत हुआ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC और DRF और लोकल पुलिस की टीमों ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया। बेहोश हुए लोगों को तुरंत उस्मानिया हॉस्पिटल, यशोदा मलाक प्लेट और DRDO अपोलो हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक चश्मदीद जाहिद ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं जा सके। शटर और दीवार तोड़कर पहली मंजिल पहुंचे, लेकिन सब कुछ जल चुका था। एग्जैक्ट 6:10 को इधर आँच लग गया। हम लोग फ्रेंड के साथ जा रहा था, 2 लेडी ठहरा हुआ था। उन लोग बोला भैया मेरा फैमिली अंदर, बच्चा है छोटा। वो तो हम लोग पूछा मैडम दरवाजा किधर है, गेट इधर से नहीं आ सकते, आँच पूरा इधर से आ गया। तो हम लोग शटर तोड़ के हम लोग पूरा अंदर घुस गया। अंदर घुसे बाद में फिर एक दीवार है
वो दीवार को हम लोग तोड़ के करके 5-6 जने पूरा सामान हथौड़ी मंगा के पूरा सबल मंगा के अंदर घुस गए हम लोग। घुसे आदमी अंदर आँच बहुत था तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर भागे ऊपर हम लोग इनो और मैं हम लोग दोस्त थे पूरे भागे हम लोग ऊपर देखा तो आँच बहुत था। 1 घंटा वेट करे बाद में थोड़ा पूरा आगे ये लोग पुलिस का भी गुड वर्क था भाई और पेरिशियन भी आ गया पूरा कॉपरेट करे। अच्छा बस इतना है कि वो आँच बहुत होने की तरफ से बचा नहीं सके बस। कितने लोग ऊपर एक रूम में 7 लोग थे 7 जने थे और दूसरे रूम में 6 थे जी और नीचे 2-3 थे बोल के सुने में हम लोग तो उन लोग को बचाने में थे तो लोग कितने लोगों को बचाया आपने? हम लोग 7 जनों को बचाया नहीं वो डेट हो गया भाई। बचाता तो बहुत अच्छा था। आँच कहाँ से था? आँच पीछे से मतलब क्या था? आँच पीछे से बहुत था साहब अंदर से आँच था। ये फ्रेंड सर्कल में नहीं था आँच नहीं कोई रास्ता नहीं है पीछे से कोई भी रास्ता नहीं है खाली यहाँ से रास्ता था और यहाँ से था हम लोग जो दीवार तोड़ के गए हम लोग अंदर। वो दीवार भी है अंदर टूटा हुआ है पूरा जी आओ बाजू के उससे वो एक दुकान से तोड़ के अंदर गए हम लोग 5 जने थे। हम लोग 5 से 6 जने थे। हम लोग पूरा मरिया वाला एक ही फैमिली क्या है? एक ही फैमिली है पूरा उसका भाई का फैमिली ऐसा कुछ है। मेरा भी एक्चुअली होल्डर हाउस पे बेंगल्स का कारोबार है। तोड़ने में टाइम नहीं लगा मिनिमम पौन घंटा लगा। हम लोग 6-7 जने खोले भाई बाद में लोग और बढ़ते गए। उन्हें थक गया उन्हें करा उन्हें देखो मेरा हाथ देखो क्या चीज से तोड़ा? सब्बल से तोड़े सब्बल से और वो कुलाड़ी टाइप में कुछ है वो दो तरफ फायर ब्रिगेड का आ गया और लोग आ गया। बहुत लेट आया। हाँ थोड़ा लेट आया नहीं फिर लाइन से गाड़ी आगे पूरे आगे मगर वो आँच के सामने कुछ भी नहीं करता। आँच बहुत था साहब। हम लोग खुद 1 घंटा वेट करे ऊपर बोल रहा मैं आपको क्योंकि जा नहीं सकते थे अंदर। अब वो हम लोग इंसानियत के नाते घुस गए। हम लोग मासूम बच्चे बोले तो घुस गए अंदर मगर हम लोग किसी को बचा नहीं सके। इस हादसे में किनकी जान गई उनके नाम भी बताते हैं। उनमें 70 साल के प्रहलाद से लेकर 1.5 साल का मासूम नन्हा प्रथम भी शामिल है। अन्य मृतकों में मुन्नी 70 साल, राजेंद्र मोदी 65 साल, सुमित्रा 60 साल, हेमा 7 साल, शीतल 35 साल, प्रियांशु 4 साल, इराज 2 साल, आरुषि 3 साल और ऋषभ 4 साल का है। वहीं अनुयान 3 साल, वर्षा की उम्र 35 साल, पंकज 36 साल, रजनी 32 साल और इड्डू 4 साल का नाम शामिल है। जो दर्दनाक वाकया आज हादसा गुलजार हाउस में हुआ है जिसमें एक ख़ानदान जो पिछले 125 साल से इस इलाके में रह रहा है उन्हीं के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स 17 लोगों की आज मौत हुई है और बड़ी तकलीफदेह बात है। और मैं इन 2 नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि जो सुबह में ये लोग अंदर घुसकर नमाज सुबह 6 बजे 5:30 पौने 6 बजे दरमियान में अंदर घुसकर बचाने की कोशिश भी किए। फिर फायर सर्विस भी आया मगर अफसोसनाक बात है और हम ताज़ियत पेश करते हैं उनके ये डिसीज फैमिली मेंबर्स के लिए। वहीं इस बड़े हादसे पर पीएम मोदी और सीएम रेड्डी ने गहरा दुख जताया है। साथ ही साथ मुआवजे का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए लिखा कि उन्हें इस हादसे से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अफसरों को फौरन राहत और इलाज के निर्देश जारी किए हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ ऐसा अधिकारी बता रहे। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करके सरकार के तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूं। फिलहाल आग लगने की असली वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस को शक है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। हालांकि आधिकारिक जांच चल रही है। संपत्ति को काफी ज्यादा लाखों का नुकसान हुआ है जिसका आगे भी आकलन किया जा रहा है।